सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा रहा ईद? अच्छा, ओके, वेल एंड गुड। चलो, इन आवर लास्ट लेक्चर्स कोलम्स तुम्हारा ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम वहां से शुरू करते हैं। ओके, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। और आज का क्लास, इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन सम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट very easily. Hope those of you are suffering in a flood crisis, I hope you are also recovering. Okay, may Almighty help you all, right? Okay, let us start with Ohm's law. Ohm's law. So what exactly was Ohm's law? In that class I have explained to you already. If we use a conductor, clear, and across this conductor you are applying a potential difference, okay, of V volt. So current flowing in a conductor is I. So if some physical parameters of this particular conductor remains constant, for example, what physical parameters, like temperature, like length of the conductor, okay, if it remains constant, then what will happen? The current flowing through this conductor will be directly proportional to the potential difference applied across the conductor. That means more potential you apply through the same conductor, you will be getting more current. Clear? So this is your Ohm's law. When you make it equal, I will become a constant, will come 1 by R V. Okay, this 1 by R we can replace it by capital Z. These are known to us already. R is what? Resistance. Okay, 1 by R is nothing but Z. Z is what? Conductance, because these two properties are reciprocal to each other. Conductance, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम होगा, और या कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. यानी a conductor with high conductivity will have low resistance and a conductor with high resistivity will have low conductance. ठीक है, एक ज्यादा तो दूसरा कम. And that is what exactly by resistance, what do you understand, is the property of a conductor which opposes the flow of current through it, and conductance is the property which helps in conductivity. What conductivity? In conduction of heat and current through the conductor. Okay, so यहाँ पर V is equal to RI. Okay, so V is equal to RI, लेकिन ये Ohm's law नहीं है, Ohm's law ये है. Okay, this is an expression we get from Ohm's law. और यहाँ पर इस R को constant होना है, resistance इसको क्या होना है? Constant. So basically here R is equal to resistance. Okay, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी. Resistance. This particular constant depends on three factors. Okay, number one, it depends on the temperature of conductor. Okay, इस कंडक्टर की टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इसलिए इफ यू चेंज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल चेंज. सो व्हेन रेजिस्टेंस चेंजेस, V will not be directly proportional to I. इसलिए ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जैसे मैंने मेंशन किया, जैसे टेम्परेचर या लेंथ, ये सारा क्या होना है? कांस्टेंट होना है. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, temperature of conductor, number two, nature of the material. कौन सा मटेरियल है? ये कॉपर है या एल्यूमिनियम है या आयरन है? कौन सा मटेरियल है? ओके, इसकी पर नेचर ऑफ द मटेरियल की पर डिपेंड करेगा. और थर्ड थिंग, इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर. ओके, इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर. जब हम डायमेंशन की बात करेंगे, वी शुड अंडरस्टैंड इट विल डिपेंड ऑन length and cross sectional area. It will depend on what? Length and cross sectional area. How it depends on length and cross sectional area? So if we have to show you, R directly proportional to the length of the conductor. If a given conductor is there, okay, इस कंडक्टर हम चेंज नहीं करने वाले, एक गिवन कंडक्टर, फिक्स कंडक्टर इज गिवन टू अस. इसका एक लेंथ है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है. लेंथ जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, inversely proportional to cross sectional area.
So when you make it equal, R becomes another constant will come now, rho, जिसको हम rho कहेंगे, rho L by A. What is this rho? इसको कहते हैं resistivity. What? Resistivity. चलो resistivity को define करते हैं. Okay, what does it call? Resistivity. So this is the resistance of a given conductor. Okay, what is this rho? Rho is called as what? Resistivity. It depends on first two, temperature and nature. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, आयरन के लिए अलग. गुड. So resistivity. Now question is, how do you define resistivity of a conductor? जैसे example, जैसे how do you define density? Okay, rho is used for density also. Okay, but here rho will be representing resistivity. Or let me use for density D, small d. What is density defined as? Mass divided by volume. Mass divided by volume. So how do we define? Is if V is equal to 1, then D becomes equal to M. Yani density is equal to the mass when volume is 1. That means if we consider a unit volume, तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास होगा उसी को डेंसिटी कहा जाएगा. सिमिलरली यहां पर देखो, R is equal to rho L by A. If L is equal to 1 and cross sectional area is equal to 1, then how much is rho? Rho is nothing but equal to R. अगर ये दोनों 1 1 है, that means a conductor having unit length and unit cross sectional area. So if you have a conductor, okay, जिसका लेंथ कितना है? 1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 है, 1 यूनिट. तो इस पार्टिकुलर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा? रेजिस्टिविटी. ओके, तो इसीलिए सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द resistance of the conductor having unit length and unit cross sectional area. इसीलिए resistivity has one more name. What is that? Specific resistance. Is it okay? Okay. So specific resistance. So another point, the unit of resistance, SI unit I'm talking about, is what? Ohm. OHM, ohm. Okay. So what will be the unit of conductance? Conductance is 1 by R, that is 1 by ohm. So we'll write it as ohm inverse or ohm inverse. Ohm inverse is also written as, इसको उल्टा कर दो, इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, MHO. ओके, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियस, MHO. और इसको उल्टा कर दो, इनवर्स उल्टा हो गया. ये भी यूज किया जाता है, राइट? सो ये रेजिस्टेंस ओम, ये मो, उल्टा है. सिमिलरली रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? यूनिट. Okay, rho is equal to what? Ohm into area. Area मतलब meter square divided by meter. So one of the meter get cancels. Rho will become ohm into meter. Okay. Similarly, resistivity का यूनिट कितना है? Ohm into meter. That is ohm meter. So resistivity का reciprocal, इसको कहते हैं conductivity. This is Z is equal to 1 by R. Similarly, 1 by rho is what? Sigma. Conductivity. I have already shown it in brief velocity and all. So this is conductivity, sigma. Sigma is the reciprocal of resistivity. So sigma का यूनिट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल है, यानी
ओके 1 by ओम इंटू 1 by मीटर. सो 1 by ओम कितना हो जाएगा, मो हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीटर. यानी यू कैन राइट इट एज मो पर मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ सिग्मा. सो इसके बारे में हमें बहुत सारा वी हैव टू डिस्कस मेनी थिंग्स, बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी रिटर्न बैक टू ओम्स लॉ वंस अगेन. ओके, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले ओम्स लॉ में जाते हैं. सो लेट मी wrap up this one also. So ओम्स लॉ क्या मिला था हमें ओम्स लॉ से, V is equal to RI. अब वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इज नथिंग बट across this particular conductor we are applying a potential difference of V volt. Okay, ये positive है, negative है. So inside there will be an electric field E. Length of this conductor is L. So potential difference कितना होगा, V will become what, E into L. Inside there will be almost uniform electric field, right? And how much is R? R is nothing but rho L by A. This is current. So here if we cancel L and L, 1 by rho will come to this side into E. Current divided by area, we have this is current density. Clear? So Z can be shown 1 by rho is nothing but sigma into E. This is also another forms of Ohm's law. Okay, Ohm's law. This is Ohm's law involving fundamental vectors of इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके, इसको कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, और क्योंकि दोनों वेक्टर्स है, इसमें दोनों स्केलर्स है. पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर, करंट इज आल्सो स्केलर. दिस इज आल्सो वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर. क्लियर? सो इसको इस इन अनदर नेम ऑफ दिस वन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक व्यू. माइक्रोस्कोपिक, ये भी सुनाई देगा तुम्हें, Ohm's law in microscopic view, or this is called Ohm's law in vector form. Current density is a vector, electric field is a vector. Clear? Okay, इसको भी याद रखो. अब another point. If you have to plot Ohm's law graphically, okay, so we talk about the variation of current with respect to potential difference applied. Okay, and what is that? I directly proportional to V. Yani you keep on increasing the potential difference applied across it, current across it will keep on increasing linearly. That is directly proportional. Something like Y directly proportional to X is something like Y is equal to mx, straight line passing through the origin. So this is what exactly Ohm's law. Right? The graph will become like this. So slope of this graph, theta. If I have to find out the slope of this graph, slope will become how much basically? Y versus dy by dx, or I'll call delta y by delta x. That is the slope of a graph. Y versus x. So along y, who is there? Current, change in current with respect to a change in potential difference. Okay, what is this then? Current by potential. What will get current by potential? What you get current by potential? Current by potential is nothing but 1 by R. So the slope of IV graph gives you what? 1 by R. That is, it gives you what? Conductance. Slope of IV graph gives you what? Conductance. But if you get a graph like this, V versus I, and if you have to find out the slope of this graph, so यहाँ पर slope कितना होगा? tan theta. Tan theta कितना है? Perpendicular by base, यानी V by I. So this will become resistance R. No problem. But if the graph comes as I by V, then the slope of the graph will give you the reciprocal of resistance. For example, for two different conductors A and B, for two different conductors, okay, for two different conductors A and B,
the variation of current with voltage is shown in the figure. The variation of current with voltage is shown in the figure. Which conductor has greater resistance? Which conductor has greater resistance? So this is IV graph. What will find out? We'll find out slope. तो क्या मिलेगा यहां से? Okay, slope of A is bigger than the slope of B. And IV graph, what the slope gives you? 1 by R. इसका मतलब 1 by RA greater than 1 by RB. If that is the case, then RA will be less than RB. Done it? RA less than RB. So this is how we can calculate. So basically this particular graph is coming from Ohm's law, directly proportional, right? So those conductors which follow Ohm's law will be called as what? Ohmic conductors. And those who do not follow Ohm's law, they will be called as what? Non-ohmic कंडक्टर. इसीलिए ये ग्राफ एप्लीकेबल है अगर R कांस्टेंट है तो. क्या है? अगर R कांस्टेंट है तो. अभी हमने देखा R डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, इसीलिए हम जानते हैं कि अक्रॉस ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, across this conductor you keep on allowing the potential to flow for some time. Let me apply a variable potential. इसका मतलब है वेरिएबल, यानी दिस पोटेंशियल को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ. ओके, सो इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और कीप ऑन चेंजिंग इट ओवर ए लॉन्गर रेंज, ओके, सो यहाँ पर करंट फ्लो होगा. एज अ रिजल्ट इस पार्टिकुलर मटेरियल का क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा. इसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जिसके बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो R चेंज होगा, R चेंज होगा तो I will not become directly proportional to V. इसीलिए no matter whether the conductor is ohmic or not, even in ohmic conductors, if you go for a bigger change in potential, even the graph starts deviating from the straight line. There will be some sort of bending and all, which will show that beyond this particular point I is not directly proportional to V. मतलब इस point के आगे Ohm's law applicable नहीं होगा. So even the ohmic conductor will behave as non-ohmic conductor. So non-ohmic conductors के लिए ये graph applicable नहीं है, directly proportional. Okay, straight line is for Ohm's law, और जहां से ये मतलब it will start bending. Okay, so उस point की beyond this ohmic conductor will also become non-ohmic. Okay, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज होगा. टेम्परेचर जब चेंज होगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा देन आई विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो अगर if you have a graph like this, current versus V, okay, हम लोग का ग्राफ इस तरफ से है. अब क्या बोलेंगे? तो हम देखेंगे इसमें तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है नहीं, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ओके, बट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हमें कहा गया फाइंड आउट रेजिस्टेंस एट ए, इस पॉइंट में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करेंगे? इस पार्टिकुलर पॉइंट में वी विल ड्रॉ ए स्लोप. इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड वी विल सी दिस टेंजेंट इज मेकिंग हाउ मच एंगल? सपोज θ1. सो हम कहेंगे रेजिस्टेंस एट ए इज 1 बाय स्लोप, यानी 1 बाय ओके θ1. आई वर्सेस वी ग्राफ, स्लोप विल गिव अस द रेजिस्टेंस. तो हम इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट से हम स्लोप निकालेंगे. उस स्लोप का रेसिप्रोकल क्या होगा? ओके, रेजिस्टेंस होगा. सिमिलरली इफ यू गो टू द पॉइंट बी,
ओके यहां पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है। ओके सो आर बी कितना हो जाएगा 1/10 थीटा बी। सो एज यू आर गोइंग अलोंग द ग्राफ द रेजिस्टेंस चेंजेस। इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, बोलो बोलो क्या कहते हैं इसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब बताओ इसमें कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है अलोंग द ग्राफ एज यू आर गोइंग, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हमने देखा, क्या देखा, सो tan थीटा बी, ओके बी का जो स्लोप है, ओके और यू कैन राइट लाइक दिस, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। सो स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, बिकॉज आईवी ग्राफ स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। आईवी ग्राफ में रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करता है। ओके रेजिस्टेंस इज 1 बाय स्लोप, दिस इज स्लोप एट ए, कैन कॉल थीटा ए, कैन कॉल थीटा बी। ओके स्लोप एट बी, ओके tan थीटा बी, सो रेजिस्टेंस इज 1 बाय स्लोप। सो इसमें बी में स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ए में स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ बी। सो एज यू आर गोइंग अलोंग द ग्राफ, ओके द स्लोप इंक्रीजेस, सो द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर ये आई वी की जगह में वी आई ग्राफ होता, वी आई कौन सा ग्राफ, वी आई ग्राफ होता, तो क्या होता, सो एज यू आर गोइंग अलोंग द ग्राफ स्लोप इंक्रीजेस। यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, not directly proportional, equal to slope, resistance is equal to slope, VI ग्राफ है। अब यहां पर क्या होगा, ओके RB will become greater than RA। क्यों, यहां पर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये IV ग्राफ नहीं है, VI ग्राफ है। VI ग्राफ में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप, और IV ग्राफ में इसको याद रखो। ओके तो यहां पर वी हैव सीन द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग, इसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके अगर इसमें हमें एवरेज रेजिस्टेंस निकालना पड़ा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच में एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। ओके ए बी को ज्वाइन करके इसका स्लोप निकाल लेंगे, ओके थीटा। सो एवरेज रेजिस्टेंस between A and B is nothing but equal to slope of this graph IV। तो slope का मतलब अगर ये डेल्टा V है, ये डेल्टा I है, ओके तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा I। डेल्टा V का मतलब क्या है, VB माइनस VA। व्हाट इज VB, ये है तुम्हारा VB। व्हाट इज VA, ये तुम्हारा VA, ओके डिवाइडेड बाय IB माइनस IB क्या है, बी पॉइंट का करंट, ये IB, IA क्या है, इस पॉइंट का करंट IA। ओके IB माइनस IA क्या हो गया, डेल्टा I, ये डेल्टा I है, IB माइनस IA। डेल्टा भी कितना है, VB माइनस VA, यहां से लेके यहां तक, क्लियर। तो इस हिसाब से हम एवरेज करंट, एवरेज रेजिस्टेंस निकाल देंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट था। ओके इसको भी याद रखो। अनदर पॉइंट, फिर दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। रेजिस्टेंस, ओके आर इज इक्वल हाउ मच, रो एल बाई ए। इसमें कंडक्टर है, दो तीन स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं क्विकली। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ को ज्यादा बनाओगे, जितना लंबा करोगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। यानी ये जो हम लिखते हैं ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये कब एप्लीकेबल है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहते हैं, सेम क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऊपर वाला का ना नीचे वाला का, ये नीचे वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर सेम एरिया लेंथ इज ज्यादा, ये लेंथ ज्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी R2 will become greater than R1। ओके अगर
यहां पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अब कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसको बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, इसको बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स निकालना होगा। ओके, सिमिलरली उसका इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं। ओके, इसको थोड़ा देर बाद बात करते हैं। अनदर कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L। अनदर ये भी कंडक्टर है, सेम लेंथ, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और यहां पर क्लियरली A2 इज ग्रेटर देन A1। तो क्या होगा, फॉर सेम लेंथ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ सेम, लेंथ दोनों का लेंथ सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी R2 will become less than R1। समझ में आया? अब एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो एक सिचुएशन, लेट अस कंसीडर सिचुएशंस। ओके, if a length of a conductor is changed keeping its volume constant। इसका क्या कांस्टेंट रखना है, इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, और हम क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ को we are changing the length। okay, if length of a conductor is changed keeping its volume constant, then how R will vary with L। लेंथ का साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, कब, अगर हम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो कंडक्टर की। So we are considering a conductor, okay, cross sectional area A1, length L1। फिर क्या कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शन को ज्यादा कर दिया तो लेंथ को ज्यादा कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, A1 L1, इसका वॉल्यूम A1 L1 सब बिकम इक्वल टू A2 L2। ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है हाउ रेजिस्टेंस विल वेरी विथ लेंथ, कैसे करेंगे। देखो R is equal to rho L by A। What is constant here? What is constant? Volume constant। Okay, तो एक काम करते हैं, we want to see the variation of resistance with length, we have to eliminate A को कैसे एलिमिनेट करते हैं, A को एलिमिनेट करने के लिए एक तरीका है, A को L से मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को L से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया, L स्क्वायर। अब ये है तुम्हारा वॉल्यूम, ये है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, ये दोनों कांस्टेंट है, सो R हैज बिकम व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। आया समझ में आया या नहीं आया? ओके, सो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर इस कंडक्टर का लेंथ को वेरी करोगे, देन इफ यू मेक द लेंथ डबल, रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times keeping the volume constant। clear? if you reduce the length to half, resistance will become 1/4, right? Similarly, if you in the above problem, okay, यानी ये जो सॉल्व किया अभी, इन द अबव प्रॉब्लम हाउ R will vary with cross sectional area, okay, or with cross sectional radius small r, how it will vary with cross sectional radius। This is the conductor, okay,
ये एरिया है, एरिया इज हाउ मच a, और इज एरिया पाई r स्क्वायर। ओके, लेकिन क्या कांस्टेंट इसमें, इसका लेंथ हम चेंज करेंगे। ओके, वी विल इंक्रीज द लेंथ और विल डिक्रीज द रिड्यूस द लेंथ, ओके, इन सच ए वे दैट इट्स वॉल्यूम शुड नॉट चेंज, इट्स वॉल्यूम शुड नॉट चेंज। तो क्या होगा, लेट मी स्टार्ट अगेन, r इज इक्वल टू रो l बाय a, so I want to see the variation of r with a, so I have to eliminate, okay, l। तो क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये वॉल्यूम, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर। सो r हैज बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट है वॉल्यूम, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ओके, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, neither it depends on cross sectional area, it depends on temperature and nature of the material। so ये कितना बन गया, inversely proportional to a square। so a directly proportional to a square or r square, or a square is directly proportional to r to the power 4। so this इसका मतलब है r will be inversely proportional to capital R to the power 4। so this is how, okay, resistance or resistance of a conductor will change, okay, with length and cross sectional area, keeping your volume constant। okay, so here let me give you one question as your homework। length of a conductor is increased by 2%, keeping volume constant। find percentage change in its resistance and specific resistance। okay, इसको सॉल्व करो। okay, with this I will see you in the next class, till then all the best।